Now, good morning class. As you can see, it's written isotonic and isometric exercises. They are the two another mode of doing training, isotonic and isometric, right? So what are the isotonic exercise and what are the isometric exercise? See, exercise is something which is going to give you benefit, right? It will make your body fit. But if you go deep in this, so we have different types of exercise. How we are going to conduct in the last class, I have told you about the circuit training and interval training. Now, in these two types of exercise, especially in isotonic exercise, we work on our muscles, right? On the muscle strength, or you can say the proper dimensions of the muscle, right? Or proportionate muscle we have, right? So these exercises are going to help you in conducting such type of muscles, right? There are different muscles. Whenever we do any kind of exercise, the three muscle group will always involve in them. Now the very first thing which you will have to know, the isotonic exercise. Isotonic exercise. So you can understand in this manner. Isotonic exercises are those exercises in which the movement of muscle is clearly visible. ये वो एक्सरसाइज होते हैं जिसमें आपको एक्सरसाइज करते देखा जा सकता है, राइट? वी कैन सी दैट you are performing exercise, you are doing like this, you are doing push-ups, you are running, you are skipping, right? There's so many different type of exercise you are doing, right? So isotonic exercises are those exercises in which the movement of muscle is clearly visible. I mean to say that the extension and contraction is visible. You can see, right? You can see that this particular person is doing the curling or the bench press or the push-ups or the crunches, right? Running, jogging, jumping, any kind of exercise or any kind of physical activity in which we see the movement, right? In which we see the movement, that exercise is known as the isotonic exercise. If you are writing also, so we can see, right? Some expansion and contraction is there in your fingers or in your muscles, in your elbow, wrist, biceps, triceps, then only you can lift the pen, right? So whether or not, so we can see the movement. If you are sitting in the class and you are doing this, that, so this movement can also be great under this isotonic exercise. But mind you, they are not exercise. आप movement कर रहे हो, when the movement is there in the body, right? When the movement is there in the body, you see the people are coming so late. Once I have started the lecture and they are coming, started sending me that the request. Let it be. Latecomers are always there. Now, तो वो exercise जिसमें आपके muscle के movement को clearly देखा जा सकता है, that is known as the isotonic exercise. Or you can say force applied by your muscle is greater than the force of resistance, due to which we can see the movement in the muscle. इसको अगर आप समझे, force applied by your muscle, ये muscle है, इसमें जो भी ताकत है वो आपने अप्लाई करा, right? डंबल लिया, you have applied, you have gripped the dumbbell and you have applied the force. The force of resistance is your what? Dumbbell. 5 kg का डंबल था, आपने पकड़ा, फोर्स लगाया और उसको खींच लिया. Now you this and you are lifting it like this. So this is both the contraction and this is the expansion, right? So now the another type of exercises they are, right? तो इसको थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो उनके अलग नाम हो जाएंगे. जब concentric exercise है तो eccentric exercise, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा. First you come, what is the isotonic exercise? Now the force applied by your muscle is greater than the force of resistance, due to which we can see the movement, right? तो we have to concentrate on the movement only. ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिनमें मूवमेंट ऑफ मसल आपको दिखता है, रिपीटेडली दिखता है, बराबर रेप्स में दिख रहा है, यानी कि एक बार ऐसे गए और रुक गए, तो नहीं. You have taken the first move
posture, right? तो फर्स्ट मूवमेंट तो यही है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10. तो these type of reps. तो when we are expanding and contracting, expansion is there, contraction is there. So this is what we are doing as isotonic exercise, tonic, right? आप इसको स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं ये जरूर बताता हूँ जो बच्चे थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं और दे गेट कंफ्यूज। और अक्सर मैंने देखा है कि आइसोमेट्रिक में आइसोटोनिक को एक्सप्लेन कर देते बच्चे और आइसोटोनिक में आइसोमेट्रिक को एक्सप्लेन कर सकते। तो ऐसा कोई ट्रिक यूज करा जाए तो आप कभी ऐसा कोई ट्रिक हो, ऐसा कोई क्लू हो जिससे आप कभी भूले ही नहीं। नो मैटर यू डोंट नो द डेफिनेशन, बट वो क्लू आपको अगर मिल जाए एग्जामिनेशन हॉल में, राइट, आपके ही द्वारा, तो आप यू विल फाइंड योरसेल्फ इन दैट पोजीशन टू एटलीस्ट यू राइट द आंसर। तो ये क्लू और ट्रिक मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, चीजों को उतना अच्छे से नहीं, दोज हू यूज्ड टू मग अप द थिंग्स, और जो उतना ज्यादा अच्छे से हो जाता है, राइट? हर तरह के बच्चे होता है, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस। तो क्लू ये अच्छे बच्चों के लिए भी है, अच्छे बच्चों के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा बिकॉज दे आर गुड, और ये उन बच्चों के लिए है जो, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बट दे ऑल्सो कम इक्वलेंट टू दैट गुड स्टूडेंट्स। तो वो क्लूज मैं देना चाहता हूं अपने उन बच्चों के लिए। तो टॉनिक जानते हैं ना, टॉनिक वी यूज टू शेक टॉनिक। जब आप किसी को टॉनिक पिलाते हैं तो वी यूज टू शेक। तो टॉनिक की बॉटल यूं ही नहीं उठा के पी जाते हैं, राइट? या किसी को नहीं दे देते हैं, वी डोंट। तो शेकिंग मीन्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट इज देयर wherever this term tonic is used, right? Wherever, I mean to say especially in training method, isotonic, right? तो सिर्फ टॉनिक पे ध्यान दीजिए। तो we used to shake, right? टॉनिक को शेक करते हो पीने से पहले, टॉनिक होता जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे, पीते हैं तो मूवमेंट होता है ना, शेक करते हैं ना, टॉनिक को शेक करके पीते, सो दैट जितना भी उसमें अच्छी चीजें हैं वो अच्छे से मिल जाए और आपको मिल जाए, जो भी आप में कमियां हैं विटामिन्स के, मिनरल्स की, वो सब आप तक पहुंच जाए। तो वी यूज टू शेक। तो इन द सेम मैनर आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस आर दोज एक्सरसाइजेस इन विच वी कैन सी द शेकिंग मूवमेंट। आप ऐसे भी इसको भी आप शेकिंग मूवमेंट कह सकते हैं, राइट? तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये सिर्फ वो क्लू था। अब ये बच्चे कभी नहीं भूलेंगे कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज कौन सी होती है। सर ने कहा था टॉनिक, टॉनिक को हमेशा शेक करके हम पीते। तो शेक करने का मतलब मूवमेंट। तो दोज एक्सरसाइज इन विच द मूवमेंट ऑफ मसल इज क्लियरली विजिबल, दैट इज नोन एज द आइसोटोनिक एक्सरसाइज। हमेशा ध्यान रखिए बात को कि वो एक्सरसाइज जिसमें हम अपने मसल को एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो लेंथ बढ़ जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेंथ छोटा हो जा रहा है। तो इस तरह के एक्सरसाइज व्हेनेवर वी परफॉर्म, तो दीज एक्सरसाइज कम अंडर द हेडिंग ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया होगा आई सपोज कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज कौन सी है। तो वो जिनमें आपको मूवमेंट ऑफ मसल अच्छे से दिख जाता है। आप दूर भी बैठे हैं, if anybody is doing exercise, you can very easily make it out that this is the isotonic exercise. अच्छा, जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हो तो whatever the muscular energy is present here, right? मसल में आपकी मस्कुलर एनर्जी भी होती है ना, ग्लाइकोजन, कार्बन एंड वाटर, राइट? ये प्रेजेंट रहती है और ये कभी खत्म नहीं होती है। सी एक एक करके ये खत्म होती है, राइट? और जब पहली खत्म हो ही होती है तो सेकंड आ जाती है बर्न होने के लिए, और जब सेकंड खत्म हो रही होती है, when the third is about to reach there, तो ऑटोमेटिकली आप सप्लाई कर चुके होते हैं, आपको भूख लग चुकी होती है, आप खाना खा चुके होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी सी। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हमेशा अपने मसल पे, अच्छा है वो वॉलेंटरी मसल्स हो, इनवॉलेंटरी मसल्स हो, कार्डियक मसल हो, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें मूवमेंट होता है तो डायरेक्टली तो हम वो मूवमेंट करते हैं वॉलेंटरी मसल्स पे। तो वॉलेंटरी मसल्स आर दोज मसल्स on which we have total control. हम जैसा कहेंगे वैसा आपका मसल करेगा, राइट? आप जाते हैं
आपके कोच ने बोला कि यू गो टू 10 पुशअप्स, तो आपने 10 पुशअप्स करे। अब एक प्लैंक नहीं करना है आपको, प्लैंक करा तो एक पोस्चर में गए और रुक गए, वो दूसरा एक्सरसाइज है। बट अप एंड डाउन, आप बॉडी को नीचे ले जा रहे हो, फिर बॉडी को ऊपर उठा रहे हो, राइट, एक्सपेंशन कर रहे हो हाथ का और चेस्ट पे पूरा बॉडी वेट आ रहा है आपका, तो वो एक्सरसाइजेस प्योरली आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आती है। अच्छा, अब जब आप एक्सपैंड कर रहे होते, राइट, आइसोटोनिक में अभी मैंने बताया था 2 और तरह की एक्सरसाइज होती है, एसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक, राइट। तो व्हेन वी एसेंट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, जब जो फोर्स होता है हमारा, नहीं तो पहले तो आप आ जाओ कॉन्सेंट्रिक में। नाउ ऐसे रखा आपने, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और द मैक्सिमम स्ट्रेच पुल आपके मसल में होता है, राइट। व्हेन द पावर व्हिच इज प्रेजेंट इन योर मसल, राइट, जो ताकत आपके मसल में है, स्पेशली कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस में, उसमें क्या होता है कि आपने वेट उठाया, वेट हैवी है, राइट, वेट हैवी है, तो जब हैवी वेट है तो एकदम स्ट्रेट आएगा मसल, तो प्रोपोर्शनेट आएगा। Who is this? ये कौन है बेटा?